My name is Kiran Amir and I am the Director Operations at Parsa Echo, Pakistan. Welcome all to our Hepatitis Echo series. Today's session is based on case-based discussion with experts. Before I introduce our experts for tonight's session, let me go through some standard announcements. We are part of a global movement called Project Echo based in USA Albuquerque with the objective to disseminate knowledge and best practices. We do protect patient privacy, so none of the information used in this session will identify any individual or patient. To maintain discipline, you all are muted, but we do encourage participation. So you can unmute yourself for questions or use the raised hand option or use the chat box. By participating, you have given the consent for recording. The recorded session will be available on our YouTube channel. Link will be provided by Haris in the chat box. For CME credits, please contact Uzair, our coordinator. His number is mentioned on the banner. Our experts for today's session are Professor Altaf Alam, and as Dr. Yasser Abbas could not join us, we do have Dr. Asad Ali Chaudhry with us. Professor Altaf Alam is part of Parsa Echo Pakistan program. He is our course director, also consultant gastroenterologist, hepatologist, Evercare Hospital, Lahore. Dr. Asad Ali Chaudhry is gastroenterologist, director Superhub Parsa Echo Pakistan, and vice chairman Parsa Trust. Dr. Kainat will present both the cases today. So I will hand over to Dr. Kainat. Thank you very much, ma'am. I will share the case for you. Dr. Kainat, can you see the screen? Ji Uzair. Okay, please go ahead. Assalamu alaikum. My name is Dr. Kainat, and the first case we're going to present is a female of 43 years old. Her weight is 100 kg and height is 156 centimeter. Her BMI is 41. She presented in OPD with complaint of postprandial fullness and fatigue from last 2 months. She was diagnosed in HCV in 2020, for which she took soft deck for 3 months. But she wasn't able to achieve the SVR. Her medical history is insignificant. Her family history includes her husband is also HCV positive. Her current investigations are HP is 10.5, TLC 9.17, platelet 310, creatinine is 0.6, bilirubin 0.6, AST 78, ALT is 49, PTINR 15.5 by 1.2, albumin is 4.2, sugar is 141, AFP is 10.5, HPS antigen is negative, HCV RNA is 43,200. Her EPRI score is 0.8. Ultrasound abdomen shows coarse liver exotexture with splenomegaly. So the question is that what treatment should be offered to this patient? And secondly, how should we counsel the patient for treatment as she did not respond to the previous soft deck treatment? Thank you. Assalamu alaikum, Dr. Asad here. Thank you, Kainat. So we have an obese lady in 40s with dyspeptic symptoms and fatigue, and she's treatment experienced with declatasvir and sofosbuvir, but did not achieve SVR. Husband is hepatitis C positive. We are not sure whether he was treated, and if treated, whether he achieved SVR or not. She's anemic. EPRI is 0.8, but ultrasound, there's a comment of enlarged spleen, which I will be just taking it with some concern. Otherwise, the labs, they do not look bad. So, so we just need, what we need to discuss is how are we going to about this case. So, Dr. Altaf. राइट असद, जैसे आपने बताया कि हिस्ट्री हमारे सामने है. ओबीज लेडी, डिस्पेप्सिया, हिस्ट्री ऑफ ट्रीटमेंट फॉर HCV जिसमें सफॉस्बुविर और डेक्लाटास्विर दी गई है फॉर 3 months, बट शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस 3 months ट्रीटमेंट. Husband is also HCV positive.
जैसे बताया कि इसमें अनीमिया है, डिस्पेप्सिया है, AST इज मोर देन ALT, लेकिन लिवर के सिंथेटिक फंक्शंस नॉर्मल हैं, बिलिरुबिन, एल्ब्यूमिन, INR इज नॉर्मल और प्लेटलेट काउंट भी अच्छा है. So I would certainly take some time to sort a few problems out in this patient before jumping onto the treatment. पहली बात तो ये है कि I always treat anemia if I'm anticipating ribavirin addition, which will be required in this patient because she has and we should next time round, if we treat, we should add ribavirin and maybe extend duration of treatment to 6 months. So these are the two things in my mind. So I'll certainly investigate anemia and treat. I would certainly investigate if needed for dyspepsia, and I will treat that as well. I would also vaccinate for hepatitis B. This is very important. We look at negative hepatitis B test, no history of HPV vaccination, and we don't talk about it. So this is very bad. We should talk about it, and we should ensure that she get vaccinated for hepatitis B, if not already done. इसमें कुछ टाइम लगेगा investigating anemia. While looking at MCV, I probably will start her on iron supplements while I'm waiting for iron, TIBC, B12, folic acid, stool occult blood, stool for H. pylori antigen, or fibroscan. And in the meantime, I will certainly advise her at the age of 43, weight of 100 kilogram is not something which one wants to see. So weight reduction through diet and exercise will be advised at this stage so that we can achieve some good health from that point of view as well. So this will be the initial plan on the first visit, जो अब इस वक्त हमारे सामने है. Investigate and correct anemia, lifestyle modification to lose weight, treatment and investigation of dyspepsia. And when she comes next time, we should be ready for treatment, asking for a fibroscan. Sorry, I missed this. Remember कि EPRI की थोड़ी सी limitations हैं. इसकी sensitivity और specificity इतनी high नहीं है कि आप 100% इस पे rely करें. But it's a good tool, non-invasive good tool जो हर एक के पास मौजूद होता है. अगर आपको कुछ डाउट नजर आए, जैसे इसमें नजर आ रहा है कि AST is more than ALT, although platelets are normal, there is splenomegaly and coarse liver, one should take it with a pinch of salt और थोड़ा सा फर्दर फाइब्रोस्कैन अगर पॉसिबल हो तो जरूर करा ले ताकि आपको पता चल जाए. उसकी दो वजूहात होंगी. अगर आपको पता चल जाए कि इसका F3 F4 है तो आपको ना सिर्फ राइबाविरिन ऐड करनी है, ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग करनी है, बल्कि लाइफ लॉन्ग फॉलो अप करना है फॉर HCC. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अप फ्रंट कि आपको पता हो बिफोर यू ट्रीट कि आपका पेशेंट F3 F4 या सिरोटिक तो नहीं है. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव दिस आंसर. सो ये इनिशियल प्लान होगा. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि काउंसल कैसे करना है. ऑफ कोर्स ये आपने इसको जो अपार्ट फ्रॉम जो मैंने बताया कि वेट रिडक्शन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपने इसको बताना है कि हेपेटाइटिस सी कैसे फैलता है. सो जाती इस्तेमाल की वो तमाम चीजें जिस पर खून लग जाता है उसको अलग रखें. मसलन तौलिया, टूथब्रश, रेजर, कंघी, नेल कटर, हेयर ब्रश. खून निकले उसको कोई आदमी हाथ ना लगाए, जख्म हो उसको कवर कर ले. आमतौर पे साथ रहने, साथ खाने, साथ सोने, साथ पीने से कुछ नहीं होता. ना कपड़े अलग, ना बर्तन अलग, ना बिस्तर अलग. यहाँ पर हस्बैंड इज HCV पॉजिटिव.
कहा यह जाता है कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन इज वेरी वेरी लो, लेकिन हमारे सेटअप में probably there is some greater degree of sexual transmission that it normally happens worldwide, and I believe uske chand peculiar reasons hain, और वो reasons थोड़ी सी हमारे religious जो हमारी obligations हैं उससे भी linked है. For example, pubic area को हम shave करते हैं, उससे कुछ जख्म हो सकते हैं और ट्रांसमिशन का रिस्क ज्यादा हो सकता है. सो ये रिस्क्स को आपने अंडरस्कोर नहीं करना, और हमने ये इस पेशेंट को एडवाइस करना है कि अगर 100% प्रोटेक्शन चाहते हैं तो बैरियर कंट्रासेप्शन का इस्तेमाल किया जाए, ताकि ये ना हो एक तरफ आप उसे ट्रीट कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसे दोबारा हेपेटाइटिस सी हस्बैंड से लग जाता है. सो आपने हर इस वक्त, एक तो ये पेशेंट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, दूसरा हस्बैंड पॉजिटिव है, और इस पेशेंट को इनकरेज करना है कि हस्बैंड को भी लेकर आए. बड़े सिंपल टेस्ट हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं, और इलाज भी जनरली मुफ्त मिल जाता है. सो थोड़ा सा आप उसको मोटिवेट करें, इनकरेज करें कि हस्बैंड का भी इलाज कराए. तो ये चीजें आपने उसको बतानी है. और साथ ये सिंपल है कि हेपेटाइटिस सी का रिस्पॉन्स 100% नहीं है, पर्टिकुलरली उन लोगों में जो सिरोटिक होते हैं उनमें रिस्पॉन्स कम है, और जो नॉन सिरोटिक भी हैं उनमें सॉफ्ट डेक्ला के साथ 100% नहीं है, से अराउंड 95% है इन नॉन सिरोटिक, और 75 to 85% है सिरोटिक में. तो स्टिल वी हैव सम परसेंटेज ऑफ पीपल जो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे इवन नॉन सिरोटिक. सॉफ्ट डेक्ला की अगर बात करें विदाउट राइबाविरिन और 3 months की ट्रीटमेंट पे, तो आई वुड कोट 95% रिस्पॉन्स रेट. तो 100% नहीं है इन नॉन सिरोटिक. सो पेशेंट को यही बताना है कि इलाज का 100% रिस्पॉन्स नहीं है. आपने इलाज लिया, ठीक लिया, जिसने दिया ठीक दिया, ये समझते हुए कि आप नॉन सिरोटिक हो, और आपको ये 3 महीने का इलाज दिया जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट था. लेकिन अब हम, क्योंकि आप ट्रीटमेंट एक्सपोज्ड हो और हमें शक है कि सिरोटिक हो, जिसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, आपको हम राइबाविरिन कंबाइन करके देंगे और प्रॉबेबली 6 months की ट्रीटमेंट देंगे. सो दिस इज द काउंसलिंग दैट गोज इन. असद, आप टच करना चाहते हो ट्रीटमेंट को? जी, थैंक यू सर. उजैर, इफ यू कैन स्टॉप शेयर. इसमें जो एक चीज, वी हैव वेरी गुड पार्टिसिपेशन हियर टुडे, सो मैं आई वुड आल्सो लाइक टू हियर फ्रॉम ऑडियंस. एक क्वेश्चन भी है, लेकिन एक चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा, स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग टू दीज पेशेंट्स इन योर क्लिनिक, आप इनसे कंप्लायंस को भी जरूर पूछें. यूजुअली इवन सॉफ्ट डेक का, जिस तरह भी अल्ताफ साहब ने भी कहा, 95-96% हमें एसपीआर नॉन सिरोटिक में मिल जाता है. लेकिन ये अनकॉमन नहीं है जी, वो फौतगी हो गई थी, मैं 1 हफ्ते के लिए वो मैं दवाई नहीं लेके गई हुई थी और वो दवाई मिस हो गई. तो ये हमारे सेटअप में, और ये लोग काउंट नहीं करते, हम पूछते भी नहीं है. और मैं अक्सर कहता हूँ, बल्कि मैं समटाइम्स उनसे कहता हूँ कि मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपको पुलिस वालों की तरह ग्रिल कर रहा हूँ, बट आई नीड सर्टेन आंसर्स कि क्या कभी नागा नहीं हुआ था, कभी नागा नहीं. वो फिर वो कहते हैं हाँ जी वो हम गए थे, या ईद आ गई थी, या रोजे आ गए थे. और यू विल बी सरप्राइज कि कितने लोग हैं वो रोजों में दवाई छोड़ देते हैं, बाद में फिर शुरू कर लेते हैं, फिर आ जाते हैं. पता लगता है जी 1 महीना दवाई खाई, 1 महीना गैप दिया, फिर 2 महीने दवाई खाई, उन्होंने कोर्स पूरा कर लिया. तो ये इस तरह की चीजों को आप जरूर देखें. और इस केस में मेरे ख्याल में अगर आप फाइब्रो स्कैन या शेयर वेव एलास्टोग्राफी, लिवर स्टिफनेस बेसिकली नहीं भी मेजर कर सकते, I would be very keen on following this even after retreatment and achieving SPR with 6 monthly ultrasound and alpha fetoprotein, just to be on the safe side, because you never know 6 years down the road she comes up with an HCC. So there is one question in the chat कि आप इसको सॉफ्ट डेक से हमने ट्रीट किया और SPR अचीव नहीं हुआ, तो हम सॉफ्ट डेक राइबा देंगे फॉर 24 वीक्स
या सॉफ्ट वेल राइबा देंगे फॉर 12 वीक्स? आपका क्या प्रैक्टिस है इसमें? अगर आप गाइडलाइंस को देखें तो दिस पेशेंट इज रिकमेंडेशन जो है इंटरनेशनल गाइडलाइंस की, वो इसमें सोफोस्पावेर, वेलपटासवेर और वॉक्सेलाप्रिवर की है, वॉसिवी की है, लेकिन वो एक्सपेंसिव है, बाज दफा मिलती नहीं है। सो आपके पास दो चॉइसेस हैं, जैसे आपने लिखा, दोनों चॉइसेस वैलिड हैं और सूटेबल हैं। डिपेंड करता है कि पेशेंट अफोर्ड क्या करता है। आपको जैसे पता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में हेपेटाइटिस प्रोग्राम में सॉफ्ट डैक्ला अवेलेबल है और राइबाविरिन अवेलेबल है। अगर ये पेशेंट अफोर्ड नहीं करता तो इसको गवर्नमेंट सेक्टर से फ्री ट्रीटमेंट हेपेटाइटिस क्लिनिक से सॉफ्ट डैक राइबा फॉर 6 मंथ्स देंगे। अगर ये पेशेंट अफोर्डिंग है तो अगर बहुत अच्छी भी आपने सॉफ्ट वेल राइबा देनी है 3 मंथ्स के लिए, हैविंग सेड दैट, आप क्योंकि जेनेटिक टेस्टिंग नहीं कर रहे, रेजिस्टेंस टेस्टिंग नहीं कर रहे, तो इस पर्टिकुलर पेशेंट में मैं कभी भी सॉफ्ट वेल राइबा का कमिट नहीं करूंगा कि मैं आपको 3 मंथ्स का इलाज दूंगा। मैं उसे ये कहूंगा कि मैं रिस्पॉन्स चेक करूंगा, मुझे 4 वीक्स पर नेगेटिव मिल गया, सेटिस्फैक्ट्री हुआ तो मैं 3 मंथ्स का दूंगा। लेकिन हो सकता है, और ये डिजायरेबल भी है, कि इसको 6 मंथ्स के लिए ट्रीटमेंट एक्सटेंड करें। एक्सपोजर टू डिक्लेटास्विर, आपके पास रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हो सकते हैं इस पर्टिकुलर पेशेंट में। और नंबर 2, सिरोसिस। इन दोनों वजूहात के बिना से आप सॉफ्ट वेल राइबा भी अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस तो 3 मंथ्स है, लेकिन इसमें आप एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 6 मंथ्स। सो दोनों ऑप्शंस वैलिड हैं और दोनों ट्रीटमेंट्स दी जा सकती हैं डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स अफोर्डेबिलिटी। फ्री ट्रीटमेंट फ्रॉम हेपेटाइटिस क्लिनिक, गवर्नमेंट हेपेटाइटिस क्लिनिक, सॉफ्ट डैक राइबा, नो क्वेश्चन, 6 months. Private buying by the patient, soft well riba 3 months, which I certainly would like to extend to 6 months in this particular patient, because इसका exposure भी है और हमारे पास वॉसिवी की चॉइस नहीं है। लेकिन ये बात याद रखें कि अगर आप गाइडलाइंस को देखते हैं, जो आदमी एक दफ़ा ट्रीट हो गया है और उसने रिस्पॉन्स नहीं किया, उसके लिए जो हमारा जीनोटाइप है 3 में, उसमें गाइडलाइंस बड़ी क्लियरली कहती हैं कि जो माइल्डली सिरोटिक है, डीकम्पनसेटेड नहीं है, माइल्डली सिरोटिक है, उसको आप जरूर दें। डीकम्पनसेटेड में आप यूज नहीं कर सकते वॉसिवी। वॉसिवी इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्ट वेल एंड वॉक्सिलाप्रिवर। इसमें प्रोटीएज इनहिबिटर है, इसलिए डीकम्पनसेटेड सिरोटिक में आप दे नहीं सकते। सो ये आपके पास चॉइसेस हैं डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स अफोर्डेबिलिटी। अगर मेरे पास एक बहुत रिच पेशेंट है, पढ़ा लिखा है, समझता है, उसने गाइडलाइंस भी देखनी है, गूगल भी करना है, तो आप उसे स्ट्रेट अवे वॉसिवी रेकमेंड करें और अरेंज कर दें। फिरोज सन्स सप्लाई करेगा और वो कर रहे हैं। ऑल्दो उसकी कॉस्ट जो है वो, आप जैसे आपको पता है कि मोर देन 300,000 फॉर 3 month कोर्स होगी। और अगर मैं उससे ट्रीट कर रहा हूं तो इस पर्टिकुलर पेशेंट को मैं डेफिनेटली राइबाविरिन भी ऐड कर दूंगा, नथिंग टू लूज। और ये गाइडलाइंस भी कहती हैं कि जो प्रीवियस एक्सपोजर है उसमें आप राइबाविरिन ऐड कर दें। सो ये चॉइसेस हैं और ये क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू। वॉसिवी विल बी फॉर 3 months देन? वॉसिवी के लिए 3 months जी, और मैं उसमें राइबाविरिन ऐड करूंगा चाहे गाइडलाइंस कहती हैं या नहीं कहती। Any question? I'm sure we have a lot of participants here. आप सब लोग हेपेटाइटिस सी को ट्रीट कर रहे हैं in your practice. It will be a pleasure if you can unmute yourself and or raise hand का option है आपके पास. So we would like to hear from you. आप जो peripheries में specially treat कर रहे हैं, how much you encounter this treatment failure, I would say. सर मेरा क्वेश्चन है जी, वेलकम, गो अहेड।
जी सर, सर अगर एक पेशेंट सॉफ्ट वेल रिजीम लेता है फॉर 2 months और उसके बाद वो गैप डाल देता है, तो उसके बाद हमें फिर जब वो 2-3 months के बाद आता है तो व्हाट आई डू इज कि मैं उसका पीसीआर करवा देता हूँ और उसमें देखते हैं कि अगर वो नॉट डिटेक्टेड है तो उसको इसी तरह सेम मॉनिटरिंग पे रखा जाता है फॉर द नेक्स्ट 6 months या ईयर। या अगर कोई पेशेंट अब जब सॉफ्ट डेक है या सॉफ्ट वेल है, जब वो 1 month के बाद आ जाता है गैप करके, 1 month की लेके 1 month का गैप करके, उसके बाद गाइडलाइंस क्या कहते हैं? अभी तो उसके 6 weeks भी नहीं हुए, तो क्या हमें उसको भी मॉनिटर करना चाहिए आगे या हमें उसको ट्रीटमेंट स्ट्रेट अवे स्टार्ट कर देना चाहिए कंप्लीशन के लिए? जी फारूक, मैं पहले अटेम्प्ट करूंगा, उसके बाद अल्ताफ साहब से लेंगे। यूजुअली प्रैक्टिस में मैं ये करता हूं और ये बहुत कॉमन है, 3 हफ्ते दवाई खाई, 1 महीना दवाई खाई, आगे और आप छोड़ दी है। तो पहली चीज तो ये है कि बेसलाइन पे उसका एप्री क्या था। आप ये देखना चाह रहे हैं कि वो सिरोटिक कैटेगरी में जा रहा है या नॉन सिरोटिक कैटेगरी में जा रहा है। हम अपना कट ऑफ 1 लेते हैं और अगर आपके पास फाइब्रोस्कैन है तो 3 या 4 है या उससे नीचे है। पहली चीज तो ये है। अगर तो उसका वो नॉन सिरोटिक है, What I would do is कि भी तुम कुछ ना करो, 3 महीने बाद पीसीआर कराओ फ्रॉम द डेट व्हेन यू स्टॉप, और वो SVR12 मैं उसका चेक करता हूँ एंड देन डिसाइड अकॉर्डिंगली। ठीक है, एज वी टेक इट, यू नो, यूजुअली हम उसको ट्रीटमेंट फेलियर भी नहीं कहते क्योंकि वो पार्शियली ट्रीटेड पेशेंट होता है, बट वी मेक अ डिसीजन देयर। अब अगर वो पेशेंट सिरोटिक कैटेगरी में है तो मैं फिर उसका अप फ्रंट एक पीसीआर करा के देखूंगा, क्योंकि मैं ज्यादा वेट नहीं करना चाहूंगा। मैं देखूंगा और अगर उसका पीसीआर पॉजिटिव है तो देन आई वुड रीस्टार्ट द ट्रीटमेंट, और अगर उसका पीसीआर नेगेटिव है फिर मैं उसका SVR12 दोबारा चेक करूंगा 12 वीक्स आफ्टर जो जो हमारा SVR12 का लैंडमार्क होता है, एंड देन प्रोसीड अकॉर्डिंगली। जी अल्ताफ साहब, आप। जी आई एग्री फारूक, पहले की बात जो आपकी प्रैक्टिस है ये बिल्कुल ठीक है। जनरली स्पीकिंग अगर 2 हफ्ते किसी ने इलाज नहीं लिया तो आप भूल जाएं कि उसको कंटिन्यू, तो आप उसको भूल जाएं कि आप ये समझ लें कि ट्रीटमेंट खत्म हो गई, क्योंकि अब आप शुरू करेंगे तो आप फ्रेश शुरू करेंगे। तो आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल ठीक है कि एक पेशेंट ने 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 8 हफ्ते इलाज लिया, उसने उसके बाद छोड़ दिया और 1 महीने के बाद, 2 हफ्ते के बाद आपके पास आए हैं, तो आप उसका पीसीआर चेक करें। अगर वो नेगेटिव है तो आप वही नॉर्मल प्रैक्टिस 3 मंथ्स के बाद चेक करें, और अगर आप गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं ईजल की तो 1 साल के बाद चेक कर लें। और जैसे असद ने कहा कि अगर सिरोटिक है तो आप उसे 6 मंथली HCC स्क्रीनिंग पर रखें। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने 3 हफ्ते इलाज लिया और SVR अचीव कर लिया और दोबारा कभी वापस नहीं आया। जनरली ये नॉन सिरोटिक्स में होता है, सिरोटिक्स में इतना अच्छा आउटकम नहीं होता, लेकिन आपने जो जो प्रैक्टिस है वो परफेक्ट है। आप पीसीआर चेक करें, खत्म हो गया, 3 महीने के बाद दोबारा चेक करें, जो इलाज था वो पूरा हो गया। अगर 3 महीने पे भी नेगेटिव है और उसके बाद ऑनवर्ड्स भी नेगेटिव, और जैसे असद ने कहा सिरोटिक्स का HCC सर्वेलेंस करें। सो अप्रोप्रिएट है जी, बिल्कुल ठीक है। There's another question, in fact, 2 questions, Dr. Altaf, regarding the patient, the case we discussed. एक तो ये है कि क्या obesity was the cause of SVR failure, and can a person have normal platelets with enlarged spleen, and there is no mention of cirrhosis. तो ये इसको आप kindly address कर सकते हैं। जी, पहला क्वेश्चन जो था वो ये है कि ओबेसिटी, वेल इंटरफेरॉन में तो ओबेसिटी वाज अ मेजर फैक्टर, लेकिन डीएएस के साथ जितने नेगेटिव फैक्टर्स थे, जीनोटाइप 1, ओबेसिटी, ओल्डर एज, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारे खत्म हो गए। सो ओबेसिटी का पर से रिस्पॉन्स टू डीएएस डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं है।
जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या था सद? वो basically it's about enlarged spleen. Is it normal to have normal platelets and absence of cirrhosis? Right. या आपको ये शक जरूर होता है कि इसमें से कोई चीज ठीक नहीं है, थिंग्स आर नॉट फिटिंग वेल. सो अगर स्प्लेनोमेगली होता तो जनरली स्पीकिंग प्लेटलेट्स कम होते हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड इज एन ऑब्जर्वर ऑपरेटर बेस्ड टेस्ट. ये कोई सीटी स्कैन नहीं है जिसमें मुझे भी मैं मेजर कर सकता हूं कि ये 13 सेंटीमीटर है या 11 है या वॉट एवर. सो यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. लेकिन शक जरूर अराइज होता है एंड इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आपने ये नोट किया. एंड जैसे मैंने कहा कि इस केस में काफी शक होता है कि एप्री 0.8 है, प्लेटलेट्स नॉर्मल है, एएसटी मोर देन एएलटी है और कोर्स लिवर है और स्प्लेनोमेगली है. सो कुछ चीजें इसमें नहीं है एंड वन शुड ऑलवेज बी इंक्विजिटिव. और इसमें जैसे मैंने कहा था कि एक्सेल प्रोब के साथ फाइब्रोस्कैन अगर हो सके, शेयरवेव एलास्टोग्राफी इज अ बेटर ऑप्शन इन ओबेसिटी, लेकिन वो कुछ ना कुछ और जरूर करना चाहिए टू गेट टू द बॉटम ऑफ द प्रॉब्लम. सो वेरी गुड ऑब्जर्वेशन के प्लेटलेट्स नॉर्मल है, स्प्लीन बढ़ी हुई है. इसमें ये भी मैं ऐड करता जाऊंगा कि आपकी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है, तो आपको आपका जो इंडेक्स ऑफ सस्पिशन है वो हर चीज पे बहुत हाई होना चाहिए. मैं ये भी देखूंगा कि यार ये प्लेटलेट्स तो गलत नहीं है. मैंने बहुत दफा रिपोर्ट्स देखी हैं, आपने नोट किया होगा जो हमारे कुछ सेंटर्स स्पेशली गवर्नमेंट में, इवन हमारे जो ट्रस्ट हॉस्पिटल्स हैं, एल्ब्यूमिन हमेशा गलत होता है. एंड एक दफा तो मैंने इनके साथ बैठ के बाद, एल्ब्यूमिन हमें चाइल्ड स्कोर में भी चाहिए होता है, तो वो इट हैज आल्सो टू डू विद द रिएजेंट व्हिच दे यूज, और उसके अब उसकी भी कैलिब्रेशन तो उसके इश्यूज हैं. तो इन चीजों को आप जरूर देखें. और अल्ट्रासाउंड पे मेरी रिक्वेस्ट और जब मेरा एक्सपीरियंस और रिक्वेस्ट सालों से है, आप एक बंदा ढूंढें और उसके साथ स्टिक करें. एक ऐसा कॉम्पिटेंट सोनोलॉजिस्ट जो आपके इलाके का है, और अगर उसकी कॉम्पिटेंसी डाउटफुल भी है, जब आप उसके साथ स्टिक करेंगे और बार बार पोक करेंगे, वो एक्सपर्ट हो, उसे पता होगा कि मुझे बहुत सारे डॉक्टर जी कहते हैं जी आपके तो मरीजों में वो नोड्यूल निकाल लेते हैं, हमारे मरीज में तो वो नोड्यूल निकालते नहीं. उनको पता होता है कि असद का फोन आ जाना है कि सर इसको जरा देख लें, आपने देखा था, आपने नोड्यूल देखा था, आपने ये किया था. तो वो आपको थोड़ा सा एक इसमें शो करनी पड़ती है कीननेस, क्योंकि हम सब लोग ओवरवेल्म्ड हैं विद वर्क. सेम होल्ड्स ट्रू फॉर द सोनोलॉजिस्ट, और इसकी वजह से चीजें अक्सर मिस भी हो जाती हैं. तो आई थिंक हम इस डिस्कशन को जारी रखते हैं. वी हैव अनदर केस व्हिच इज मोर चैलेंजिंग, और मेरे ख्याल में उजैर, व्हाइल यू शेयर दिस केस एंड कायनात प्रेजेंट्स, अगर ऑडियंस में से कोई इस पे पहले कमेंट करना चाहे तो आई वुड रियली लाइक के हम जानना चाहेंगे कि आप इसके बारे में क्या फील करते हैं. इट इज अ केस ऑफ हेपेटाइटिस बी. उजैर आप शेयर करें एंड देन कायनात आपने प्रेजेंट करना है. Ji. So the next case is of a 19 years old male. His height is 173 centimeters, weight 71 kg, and BMI is 23.7. He is a known case of HBe antigen negative chronic infection since 2019 September. His non-diabetic and non-hypertensive, has been on follow-up since 2019. He presented in OPD for a 6 months follow-up. Currently, he have no active complaint. On examination, his abdomen is soft and non-tender, chest is bilaterally clear, and family history is on maternal side, he had a case of HCC. Investigation, we have investigation from 2019 to currently 19th May 2021. In 2019, his HP was 16.6, TLC 5.5, platelet 284, creatinine 0.84, bilirubin 0.7, ALT 76, AST 45, alkaline phosphatase 72, gamma GT is 39, albumin 4.6, HBe antigen was negative, and anti-HBe positive, anti-HTV negative, anti-HIV negative, anti-HCV negative,
and surface antigen quantitative was done in May. His PCR at that time was 36. In November, his platelets were bilirubin 0.8, ALT 61, AST 37, alkaline phosphatase 116, gamma GT 25, albumin 4.5. In June 2020, bilirubin was 0.5, ALT 46, AST 28, alkaline phosphatase 73, gamma GT 26, and albumin 4.3. And at that time, his PCR HBV was 435 international units. In February 2021, his bilirubin was 0.5, ALT 45, AST 29, alkaline phosphatase 84, gamma GT 24, albumin 4.9, and his PCR was 2,568. On 19th May 2021, his bilirubin is 0.4, ALT 47, AST 30, alkaline phosphatase 64, gamma GT 27, albumin is 4.3. His HBs antigen quantitative was done, which is 24,301 international units. His PCR is 220 international units. On FibroScan, which was done in 2019, it was F2. And in 2021, the FibroScan readings show F0, F1. Ultrasound abdomen it was done in 2019, which shows fatty liver, no splenomegaly or ascites, and no focal lesion. The question is that how should we counsel this patient? Does he need any further investigation? And should we start AVT in this case? Thank you. Thank you, Kainat. So we have a young boy, BMI 23, E antigen negative chronic infection since 2019. He reports a case of HCC from mother side of family. It's not an immediate family. Uski mother ko nahi tha. उसके आगे मदर की किसी कजन को या इस तरह करके जो माँ की साइड पे है तो वो which we were not clear, लेकिन उसकी मदर या उनकी सगी बहनों भाइयों में माँ बाप में उनमें ये HCC नहीं था, जो बिल्कुल डायरेक्ट ये है। जो आप देख सकते हैं, आपके सामने पूरी फ्लो शीट है। शुरू में ALT 76 और 61 है, बट अदरवाइज ALT इज उससे सेटल्ड है और एक ही लेवल पे 1-1.5 साल में वो 46 के अराउंड होवर कर रहे हैं। जो PCR क्वांटिटेटिव है, initially 36, then 435 after 9 months or so, and then in another 8 months 2500, and then last month it was 220. But his surface antigen quantification was done, which is the value is fairly high. FibroScan was 8.1 kilopascals in 2019, but the latest FibroScan actually liver stiffness has come down. Ultrasound is fairly unremarkable. So the $1 million question is कि हमने इसको तकरीबन आपके सामने है almost 2 years, so you can say 1.25 साल इसको follow up किया है, और अब question यही होता है कि whether or not we should be starting treatment. So if anybody from our participants want to have a say on that before I go for Altaf Saab, ये बड़ी कॉमन चीज है. इट्स अ वेरी वेल प्रिपेयर्ड. मैं कायनात आई कांग्रेचुलेट यू, क्योंकि हमारे पास काफी कुछ है डिस्कस करने के लिए और ये चीजें हम अपनी प्रैक्टिस में काफी देखते हैं. तो एनीबॉडी हु वांट्स टू कमेंट ऑन दैट? Sir, I don't think so he needs treatment. आपका ख्याल है कि इस अभी वो क्वालिफाई नहीं करता? थैंक यू. Any other comment? Okay, Dr. Altaf, if you can guide us. Generally, I agree that this is basically
hepatitis B E antigen negative chronic infection और inactive carrier state. जहां पे E antigen negative है, ALT नॉर्मल या नियर नॉर्मल है, अब की बात कर रहा हूं, और वायरल लोड लेस देन 2000 है एटलीस्ट नाउ. इस केस में थोड़े से इश्यूज हैं. एक तो फैमिली हिस्ट्री ऑफ HCC, और जो आपकी गाइडलाइंस, जो ईजल की गाइडलाइंस हैं, जो रेकमेंड करती हैं कि अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ HCC हो, वो ये नहीं कहती कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स या सेकंड डिग्री रिलेटिव्स. सो ये भी बात याद रखने की जरूरत है. सो इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं इस केस में, वो फैमिली हिस्ट्री ऑफ HCC है. नंबर 2, इसका सरफेस एंटीजन क्वांटिटेटिव बहुत ज्यादा है, और कहा यह जाता है कि ये, पहले तो मैं आपको बता दूं कि सरफेस एंटीजन क्वांटिटेटिव ये आम टेस्ट नहीं है जैसे आप एलाइजा से सरफेस एंटीजन चेक करते हैं. ये दो सिस्टम्स हैं जो चेक करते हैं, एक रोश का एलेक्सिस और एक एबट का आर्किटेक्ट, और ये आपको सरफेस एंटीजन क्वांटिफाई करके देता है इन इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिल और लॉग्स में. सो ये कहा यह जाता है कि अगर 1000 से ज्यादा हो, यानी 1 log से ज्यादा हो, तो these people are not really going to do well in the long run in terms of chronic hepatitis, cirrhosis and HCC. और जितना हायर होगा उतना ही एसोसिएशन विद HCC स्ट्रांग होती जाएगी. और कहा यह जाता है कि 10,000 से ज्यादा है तो 5 to 6 times रिस्क जनरल पॉपुलेशन से ज्यादा हो जाता है ऑफ HCC एंड chronic hepatitis and cirrhosis. So ये बात भी इस पेशेंट में मद्देनजर रखने की जरूरत है. फरवरी में इसका वायरल लोड 2000 से ज्यादा था, और 2019 में इसका मेटावर स्कोर F2 था. अगर हम इसको देखें, वायरल लोड को, और F2 को देखें, फैमिली हिस्ट्री ऑफ HCC को देखें, और अगर क्वांटिटेटिव को देखें, तो इलाज की जरूरत लगती है कि पड़ सकती है. लेकिन इस वक्त जो करंट सिनारियो है, उसमें वायरल लोड इज लेस देन 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स. एज यू कैन सी, इट इज ओनली 220. सरफेस एंटीजन क्वांटिटेटिव ज्यादा है. ALT इज अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल, लेकिन ट्वाइस द अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल नहीं है, या स्लाइटली हायर देन अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल है, बट नॉट ट्वाइस अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल. सो इसको आप अभी इनएक्टिव कैरियर में भी डाल सकते हैं और ट्रीट भी कर सकते हैं. जनरली स्पीकिंग ये याद रखें कि अगर आपने इलाज का फैसला कर लिया तो इट इज लाइफ लॉन्ग, practically lifelong, because he is not going to, you will never be able to take off the treatment except जो ईजल की गाइडलाइंस आपको बताती हैं कि E एंटीजन नेगेटिव में 3 साल वायरल सुप्रेशन रहा है, तो आप एक अटेम्प्ट कर सकते हैं उन पेशेंट्स में जो आपके पास रेगुलर फॉलोअप और टेस्ट करा के मंथली और 2 monthly और 3 monthly आते रहें once you stop treatment. So generally speaking, जो हमारी प्रैक्टिस है वो ये कि E एंटीजन नेगेटिव डिजीज लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट. तो ऑन बैलेंस आपने सही कहा फारूक के इलाज अभी इंडिकेटेड नहीं है करंट सिनारियो पर, बट दिस आल्सो कॉल्स फॉर अ क्लोज फॉलोअप. सो जो इलाज नहीं कर रहा वो इसको क्लोज फॉलोअप करे. क्लोज का मतलब क्या है? एटलीस्ट एवरी 3 months with ALT and viral load, at least 3 monthly. So अल्ट्रासाउंड की बात मैं नहीं कर रहा, अल्फा फीटो की बात नहीं कर रहा, ही इज जस्ट 19. तो लेकिन ALT और वायरल लोड every 3 months for 1 year, then every 6 months for 1 to 2 years, and then maybe 6 to 12 monthly. So close follow up इसमें required है अगर आप इलाज नहीं करते. अगर कोई इलाज करता है तो he is not wrong. ALT is not normal, it is more than normal. Very high surface antigen quantitative, F2 at one time on Metaver, and family history of HCC. So, but याद रखें कि इस यंग लड़के को अगले 60 साल
70 साल आपको इलाज देना पड़ेगा. सो बी केयरफुल इन मेकिंग दैट डिसीजन. सो आई वुड से कि अगर कोई ऑड आदमी इसका इलाज करता भी है तो और वो मेरे पास आता है पेशेंट, तो मैं कहूँगा कि गलत नहीं किया. देयर आर सर्टेन इंडिकेशंस व्हिच डिक्टेट के इलाज हो सकता है. अगर मेरे पास आता तो मैं शायद फॉलो करता और वैसे देखता. सो यू नो दोनों चीजें इसमें पॉसिबल हैं. जी असद. डॉक्टर अल्ताफ, इसमें जो एक ये कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं डॉक्टर इमरान साहब की तरफ से, बट मैं जो कहना चाहूंगा ये बड़ा ट्रिकी है. आई एम वेरी हैप्पी कि आप भी मेरी तरह क्लियर नहीं है, और ये बड़ा बहुत ही ट्रिकी है. क्वेश्चन ये है कि अभी तक ही हैज बीन फॉलोइंग अप, ही हैज बीन लिसनिंग टू अस, कमिंग, और ही हैज नॉट बीन स्टार्टेड ऑन ट्रीटमेंट येट. तो जो डर लगता है वो ये लगता है कि 19 साल का लड़का कब तक फॉलो अप कराएगा, और ये एक होता है. इसी के बैलेंस में जब मैं ये देखता हूँ कि मैं एक 19 साल के लड़के को दवाई दूंगा और वो 60 साल दवाई कैसे खाएगा, ये भी एक प्रॉब्लम है. मुझे नहीं पता कि इफ यू कैन मेक अस मोर वाइज, इस डायलेमा से हम कभी निकल सकेंगे जिंदगी में कि नहीं निकल सकेंगे. मुझे फैमिली हिस्ट्री ट्रबल्स मी. अभी एक कमेंट है डॉक्टर इमरान करीम का कि फैटी लिवर रिपोर्टेड है अल्ट्रासाउंड पे. I don't have a latest ultrasound report actually, but इसमें fatty liver report है, family history of HCC है. So what we should do, क्योंकि what I should be telling the family, मैं family को बड़ा clearly कहता हूँ कि यार to be very honest with you, there is no right way here या wrong way here. So but remember the reason why they haven't chosen treatment is it's going to be a lifelong treatment. तो मैंने कहा था कि ये फिर तुम छोड़ नहीं सकते. Maybe के skipping treatment will probably do more harm, कोई flare हो जाए, कुछ हो जाए, and then you end up in trouble. So आपसे ये जो questions हैं फैटी लिवर के बारे में और क्या बायोप्सी होनी चाहिए इसमें, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक ऐप है जो कि स्मार्टफोन में है, उसे कहते हैं हैप्पी कंसल्ट. अगर किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है तो प्लीज उसको इस्तेमाल करें. उसमें शुरू में वो आपसे कहता है कि आप कौन सी गाइडलाइन फॉलो करना चाहते हैं, पासल, ईजल या ASLD. और उसके बाद वो आपसे कहता है कि आप इसमें डेटा डालें अपने पेशेंट का, और पेशेंट का डेटा डालें. अब मैंने अभी ये किया है, मेरे पास है, मैं यूज करता हूँ एक्चुअली इसको. तो मैंने ये डेटा उसमें डाला है. तो वो कहता है कि इलाज ना करें और इसकी लिवर बायोप्सी करें अगर ईजल गाइडलाइंस को देखते हैं. अपासल ने भी लिवर बायोप्सी का कहा और ASLD ने भी ईजल और अपासल, तीनों गाइडलाइंस कहती हैं कि इसकी लिवर बायोप्सी कर लें. मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि दुनिया में हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन क्वांटिटेटिव इस्तेमाल होता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू इनएक्टिव कैरियर और वो जो कि ई एंटीजन नेगेटिव क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में है. जिनका सरफेस एंटीजन मोर देन 1000 हो उनको लोग कहते हैं कि ये ई एंटीजन नेगेटिव क्रॉनिक हेपेटाइटिस है बाय यूजिंग सरफेस एंटीजन वैल्यू क्वांटिटेटिव. सो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर आप गाइडलाइंस को फॉलो करें और ये हैप्पी कंसल्ट जो मैंने आपको बताया है, ये जो ऐप है, इसमें इसका पेशेंट का डेटा डालें तो उसमें यही आता है कि हिस्टोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस के बगैर इसको ट्रीट ना करें. वो क्या होती है इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस जिस पर ट्रीट करते हैं? एनी स्कोर मोर इक्वल टू और मोर देन A2 और F2. बायोप्सी की बात कर रहा हूं. कोई आपको टेस्ट इन्फ्लेमेशन नहीं बताएगा, कोई फाइब्रोस्कैन, कोई शेरवेव एलास्टोग्राफी आपको इन्फ्लेमेशन नहीं बताएगी सिवाय लिवर बायोप्सी के. सो अगर आप लिवर बायोप्सी इसमें करते हैं, और यूरोपियंस करते हैं और बहुत करते हैं और उनके पेशेंट्स करा भी लेते हैं, अमेरिकन नहीं करते बहुत ज्यादा और हम लोग तो बहुत ही कम करते हैं, बिकॉज हमारे पेशेंट्स और हमारे फिजिशियंस दोनों रिलक्टेंट है कराने से भी.
जो कि जस्टिफाइड है। सो लिवर बायोप्सी की वैल्यू है इसमें, अगर यही स्टेटस आप कहते हैं अनसर्टन स्टेटस 6 महीने से ज्यादा परसिस्ट कर रहा हो, तो देयर इज ऑलवेज एन इंडिकेशन टू डू लिवर बायोप्सी, अगर आपका पेशेंट एग्री करे और आप बोल्ड इनफ टू गो अहेड विद इट। बट हैविंग सेड दैट, इफ यू डोंट डू द लिवर बायोप्सी, बगैर लिवर बायोप्सी के दोनों ऑप्शंस पॉसिबल है, ट्रीटमेंट भी और नो ट्रीटमेंट भी। सो मेरे पास अगर पेशेंट नो ट्रीटमेंट के साथ आएगा तो मैं उसको भी यही कहूंगा कि मैंने भी यही किया होता। अगर ट्रीटमेंट लेके आ रहा है तो मैं कहूंगा बुरा नहीं किया, जिस फिजिशियन ने आपको इलाज दिया है उसने HCC, हाई सरफेस एंटीजन क्वांटिटेटिव, मार्जिनली एलिवेटेड ALT और फाइब्रोस्कैन 2019 में F2 की वैल्यू देख के दिया है, which is justified. So आप प्रॉब्लम यह है कि you have to continue it lifelong. So इस तरह इसमें बात चलती है। सो लिवर बायोप्सी के बारे में मैं यही कहूंगा कि yes, there is always an indication in doubtful cases to do a liver biopsy. Thank you. Any further comment? Somebody wants to join discussion? जी भुट्टा साहब, आप कुछ कहना चाहें? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत अच्छा इलेबोरेट प्रोफेसर साहब ने किया है और बड़ा अच्छा लगा ये केस। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि ट्रीटमेंट अगर करना है तो लाइफ लॉन्ग करना है, और अगर दूसरी ऑप्शन ये है कि ना करें, मैं कहता हूँ लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट जो देना है फिर भी फॉलो अप रखना है, और जब ट्रीटमेंट नहीं देना फिर भी फॉलो अप रखना है, तो इनमें से कौन सा प्रेफर किया जाए? आई एग्री। जैसे मैंने बात की कि आप पेशेंट को अगर काउंसल प्रॉपरली कर दें और ये समझा दें कि इलाज लाइफ लॉन्ग होगा और उसके अपने साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, और यू नो अगर ये पेशेंट फॉर एग्जांपल एक ऑर्थोपेडिक सर्जन होता और यूके में काम कर रहा होता, तो इसके इलाज की इंडिकेशन इवन विदाउट फैमिली हिस्ट्री, विदाउट फाइब्रोस्कैन बनती है, क्योंकि वो किसी को एक्सपोजर प्रोन प्रोसीजर करने ही नहीं देते अनलेस उनका वायरल लोड 200 से कम हो, और वो इलाज करते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का जो कि एक्सपोजर प्रोन प्रोसीजर्स करते हो। सो जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, हम जनरल सर्जन्स हैं, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन्स हैं ये, लेकिन अगर 200 से कम है दे कैन कंटिन्यू डूइंग दैट। सो इवन एट 220 वो इसका इलाज करेंगे। ये नंबर्स वेरी करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लेकिन यूके और यूरोप में 200 से ज्यादा लोगों को काम नहीं करने देते। तो आपकी बात कंसर्न्स बिल्कुल सही है कि इलाज देके भी फॉलो करना है, ना देकर भी फॉलो करना है, और ड्यूरेशन भी तकरीबन वही बनती है, एक्सेप्ट ये कि आप इलाज देते हैं तो थोड़े लिबरल हो जाएंगे। 19 ईयर के लड़के में एवरी 6 to 12 मंथ्स का फॉलो अप होगा, और अगर आप इलाज नहीं दे रहे तो पहले साल में 3 मंथली है और उसके बाद 6 to 12 मंथली आप खुद कर सकते हैं। जब तक ये 40 साल का नहीं हो जाता उसके बाद 6 मंथली अल्ट्रासाउंड और अल्फा फीटोप्रोटीन करनी पड़ेगी। लेकिन ये डायलेमा है, ये डिफिकल्ट केसेस हैं। बी का सिचुएशंस आर वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड आई थिंक द बेस्ट इज टू एक्सप्लेन टू द पेशेंट बैठ के कि कुछ लोग इलाज करेंगे इस सिचुएशन में इन वजूहात की बिना पर, लेकिन मैं समझता हूं कि आई एम नॉट जस्टिफाइड टू ट्रीट यू फॉर नेक्स्ट 60 years। आई वुड रादर फॉलो यू आप, या अदर वे राउंड के मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, आई वांट टू ट्रीट। आई एम श्योर कि आपके पेशेंट दोनों सिचुएशंस में अंडरस्टैंड करेंगे, ऑल्दो दे मे go to another physician and have another opinion, but this will keep on happening. You can't prevent that. So evidence based practice करने का करें, और ताकि अगर आपका ट्रीटेड पेशेंट मेरे पास आए तो मैं उसे कहूँ कि हाँ जी, इट इज जस्टिफाइड टू ट्रीट और इट इज जस्टिफाइड टू फॉलो अप। दोनों चीजें ऑप्शंस हैं। इसमें जो एक और चीज हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है और समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट भी है, अब आई बीन
practicing for nearly 20 years in Gujranwala. और प्रॉब्लम ये होती है कि एट टाइम्स व्हेन जब आप डिटेल डिस्कशन नहीं करते और इन्फॉर्म्ड डिस्कशन नहीं करते, तो ये कोई बहुत अनलाइकली नहीं है कि जब इसकी उम्र 25 या 28 साल हो, ही कम्स अप विद एन HCC और आपके टेस्ट भी ठीक जा रहे हैं, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, आपके ALT भी यही जा रहा है, वायरल लोड भी लेस देन 2000 है, थोड़ा बहुत ऊपर ये भी हो सकता है कि नेगेटिव हो गया हो, और वो बहुत ही ज्यादा। और आई रिमेंबर अ कपल ऑफ माय पेशेंट्स जो 6-7 years डाउन द रोड, ऑफ कोर्स फॉलो अप वाज नॉट दैट मेटिकुलस, लेकिन वो इस तरह हो चुका हुआ है हेपेटाइटिस बी के साथ, एंड देन यू आर इन अनदर ट्रबल। और उस वक्त फैमिली जो है वो कहती थी आपने तो बताया नहीं था, आपने तो ये नहीं कहा था, हम तो आपके पास आए थे। ये सारी चीजें मेरे ख्याल में हम सब लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो होते हैं। और मैंने इसको बायोप्सी भी ऑफर की हुई है, विच दे आर रिलक्टेंट, और दैट्स व्हाई तो सेकंड टाइम मैंने तो कहा था कि यार बायोप्सी करके देख लेते हैं, इसमें कुछ भी नहीं पता लगना, हम उधर ही उधर खड़े होंगे। और दूसरा जो है HCC की हर दफा डिस्कशन होती है, मैं यही कहता हूं कि ये चॉइस है, we can go both ways, you have to have a meticulous follow up, लेकिन ये जहन में रखो कि ये प्रॉब्लम आ सकता है, और that's why I would like to treat। और अगर इसी तरह जिस तरह इसका वायरल लोड एक दफा 2500 आया, फिर किसी और दफा भी 2200-2300 आ गया, इसकी आगे शादी भी होनी है और वो सारा कुछ है, तो इन चीजों को भी देखना है। और ऑफ कोर्स मैंने उसको भी बता दिया है कि भी तुम्हारी जब मंगनी होगी तो मेक श्योर यू गेट योर फियांसी वैक्सीनेटेड। इट्स नॉट वेरी इजी, हमारे लिए कह देना बहुत आसान होता है। हमारी सोसाइटी में ये पता चल जाए कि लड़का डिफेक्टिव है या लड़की डिफेक्टिव है तो ये बहुत मेजर इशू है, और पीपल डोंट टेक इट वेल। तो उसी स्टेज पे इसको कता करना पसंद करेंगे इस रिलेशनशिप को, rather than going ahead। So it's a very very difficult and challenging situation। तो ये भी हो सकता है कि उसको कहा जाए कि भी to give them confidence कि तुम ट्रीट कराओ, you are well। जिस तरह भी अल्ताफ साहब ने कहा, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, तो the viral load has to be less than 200, that's it। तो इस तरह से है। तो well, very very nice। Any comments? We still have I think 3 to 5 minutes। अगर कोई कमेंट देना चाहते हैं तो you are more than welcome। सर ये एक्सक्यूज मी सर, जी सर। सर ये काउंसलिंग के लिहाज से मैं बस मेरा अपना जाती क्वेश्चन है कि कई पेशेंट्स जो होते हैं ना जी, टर्शरी केयर हॉस्पिटल से वापस आ जाते हैं, वो मतलब वो कहते हैं कि ये ठीक नहीं हो सकता। मेरे पास कई पेशेंट आ जाते हैं जी, मैं उनको समझाता हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आती। में कनेक्शन गड़बड़ कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है कि वो गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल में लोड इतना ज्यादा होता है कि काउंसलिंग वैसी नहीं है जैसी आपकी है। सो अगर उनके पास 300 पेशेंट्स एक सेशन में ओपीडी में हैं तो ये प्रॉब्लम होता है। सो अंडरस्टैंड ये लिमिटेशंस हैं, और वो ब्लंटली कह देते हैं कि हेपेटाइटिस बी तो कभी भी नहीं जाएगा, खत्म नहीं होगा। लेकिन फैक्ट्स बताने चाहिए कि 1% पर ईयर नेगेटिव होने का चांस है। आज अगर आप जैसे 100 लोग हों तो 99 रह जाएंगे अगले साल। आपकी बारी 1 साल के बाद आती है या 100 साल के बाद या कभी नहीं आती, हु नोज। और जैसे असद ने कहा ये होगा, अगर आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो कुछ आपके पेशेंट 10 साल 15 साल डाउन द रोड HCC के साथ आएंगे। सो ये होगा। अफ्रीकन में 20 इयर्स की एज में HCC सर्वेलेंस शुरू हो जाती है। सो ये भी याद रखें। प्रॉब्लम यहाँ पर ये होता है कि पेशेंट कंप्लाई नहीं करते विद फॉलो अप, और चाहे वो आप 20 साल पे शुरू करें या 40 साल पे शुरू करें, कंप्लायंस both with treatment and with follow up is mandatory। और जहां भी आप ये HCC देखेंगे या with और without treatment, वहां पे compliance with follow up का प्रॉब्लम जरूर होगा। तो जी फारूक, आपकी बात सही है। थैंक यू जी फारूक, you had a question quickly please।
जी सर, मैं ये सर डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में हेपेटाइटिस क्लिनिक्स के साथ एक बहुत बड़ा डिलेमा ये है कि वो 1 ईयर से ज़्यादा बी की एंटीवायरल पेशेंट को नहीं देते हैं, और जब 1 ईयर कंप्लीट होता है तो उसके बाद वो पेशेंट को ये भी नहीं बताते हैं कि अब आपने इतने महीने या साल या लाइफ लॉन्ग बाहर से लेके खानी है। वो जब पेशेंट का 1 साल कंप्लीट हो जाता है, वो कहते हैं हमारे पास आपका सिलसिला खत्म हो गया, हमारे पास आपका कोर्स पूरा हो गया है, हम आपको मजीद दवाई नहीं दे सकते और आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है। वहाँ पे जो जनरली एमओज बैठे होते हैं वो पीसीआर नेगेटिव देके पेशेंट को फारिग कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है, और इसके ऊपर सर कुछ कमेंट्स अगर हो जाए तो। ये गयास साहब के साथ हमने बहुत पहले रेज किया था और उन्होंने ये बात की थी कि ही विल लुक इनटू दैट और इसको रेक्टिफाई करेंगे। और कुछ जो मेरी लास्ट उनके साथ कॉन्वर्सेशन हुई थी वो ये थी कि ये रेक्टिफाई कर दिया गया है और आपकी रिकमेंडेशन पर हेपेटाइटिस क्लिनिक्स में वो लॉन्ग टर्म कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मैं पर्सनली तो अब हेपेटाइटिस क्लिनिक के साथ एसोसिएटेड नहीं हूँ, सो आई एम नॉट श्योर वेदर ये प्रैक्टिकली हो रहा है, बट आपका पॉइंट इज वेरी वैलिड। और अगर ये नहीं हो रहा तो हम फिर इसको टेकअप करेंगे और इसको चेंज कराएंगे कि जब हम लिखें कि ट्रीटमेंट इज लाइफ लॉन्ग तो इट शुड बी लाइफ लॉन्ग। थैंक यू जी। अभी तक तो नहीं हो रहा क्योंकि मैं खुद भी इन्वॉल्व हूँ हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के साथ, तो स्टिल 1 ईयर ट्रीटमेंट। और दैट्स वाई कि जब हम शुरू करते हैं तो वी टेल देम कि ये इशू आएगा। फॉर्चुनेटली ये जो टेनोफाविर जो TDF है इट्स प्रीटी चीप, और 1 महीने का ट्रीटमेंट तो हमारे जो ट्रस्ट को उसको वो काफी चीप मिल जाता है, तो हम फंड भी कर लेते हैं। तो इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। अगर 1000 रुपए की भी दवाई 1 महीने की है तो लोग कर लेते हैं फॉर्चुनेटली। वेल, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। दिस हैज बीन अ वंडरफुल सेशन। ये जो हमारा हेपेटाइटिस एको है इट्स नाउ अ मंथली अफेयर, और इन बिटवीन हमारा पैलिएटिव केयर है जो कि नेक्स्ट ट्यूसडे होगा। इसके अलावा एक हम डाइजेस्टिव डिजीज एको पे काम कर रहे हैं, तो यू विल बी हियरिंग फ्रॉम अस प्रीटी सून। और एक हमारा अपकमिंग इज ऑन एनवायरमेंट रिलेटेड डिजीजेस, जिसके ऊपर हम काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। किरण एंड उजैर टीम दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, जिसमें हमारे हम थोड़ा सा एनवायरनमेंट और उससे रिलेटेड जो हेल्थ हैजर्ड्स हैं उनके ऊपर जनरल प्रैक्टिस में भी उसके ऊपर बात करना चाहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच इंडीड। किरण, ओवर टू यू। जी, thank you, Professor Altaf Alam Saab and Dr. Asad Ali. So we are also grateful to Pakistan Society of Hepatology and Ferozin's Lab for unrestricted educational grant. And I would also like to thank our chairman, Parsa Trust, Chaudhry Suhail Akhtar, Dr. Asad Ali Chaudhry, our director, Dr. Amna, our facilitator, Uzair, our coordinator, and Haris for IT support, and Salaman. So Allah Hafiz, and Uzair, you can call off the meeting. Thank you very much, ma'am. I'm going to call off the meeting now.